Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is related to aircraft characteristics. It is very important to study about the aircraft characteristics. If you design any airport or runway, you have to know about the aircraft characteristics. International Civil Aviation Organization categorize airport into category A to category E. If it is an international airport where domestic and international flights can take off or land, you design your airport according to category A codes and specification. And for this, you know about the aircraft characteristics. Introduction: airplane, engine-driven vehicle that can fly through air supported by the action of air against its wings. Any device which can fly with the help of engine and its wings, it is an airplane. Airplanes are heavier than air in contrast to vehicles such as balloons or airships, which are lighter than in air. Airplanes have rigid wings, movable parts of the wings and tail, which can make it possible to guide. Basically, airplanes have their rigid wings, and in the wings there are some flaps or components which guide them to rotate or move uh, with this airplane. Land planes operate from the ground, sea planes operate on the water, amphibians can operate both on air and sea, on land and sea. In this picture, you can see this airplane take off from sea. Aircraft characteristics, you know about the types and number of engines of that aircraft, aircraft dimensions. If the aircraft have large dimension, then it required more turning radius. Aircraft speed, if this aircraft have more engines, then its speed is high. Maximum structural takeoff weight, it is a weight that can any aircraft uh, required to take off. Wingspan and total length, I can show you in the next slide. Wheel track, wheel and wheelbase, payload, basically ये सब categories हैं जिसे हम किसी aircraft को categorize करते हैं या उसकी characteristics को explain करते हैं. Gear, wheel configuration, aircraft capacity, operating range, and noise. In this picture, you can see this is an aircraft. This is its center of gravity. It is called cockpit, and this length is called fuselage or body. These are aircraft components. This is cockpit. Here हम इसकी command and control होता है जहाँ पे आपका पायलट इसको कंट्रोल करता है बैठ के. This is fuselage body. Whole things together carry payload and fuel. बेसिकली पे लोड वो लोड होता है जिस पे लोड में हम पैसेंजर्स का और कार्गो का लोड जो हम ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये पे लोड है इस एयरप्लेन का. और प्लस फ्यूल, ये आपका फ्यूजेज बॉडी में होता है. दीज आर द विंग्स, और ये विंग्स के साथ इसके जेट इंजन्स लगे होते हैं, 2 और या 4, जैसे डिपेंड करता है आपके एयरक्राफ्ट के ऊपर. Basically these are the 4 components which guide them. ये slates, spoiler, aileron और flaps. ये flaps जो होते हैं change, lift and drag करते हैं उसको आपके airplane को. ये आपके रोटेशन के तौर पे काम आता है. स्पॉइलर जो होता है वो आपके ये भी रोटेट के काम आता है, और ये भी आपके चेंज लिफ्ट के काम आता है. और ये आपके बैक विंग्स होते हैं जिसको हम एलिवेटर कहते हैं. इसके ऊपर ये जो एलिवेटर्स होते हैं ये इसको अप एंड डाउन करने के काम आते हैं. और ये इसकी टेल होती है, और टेल के ऊपर रडर होते हैं. रडर आपके ये भी आपके जो साइड टू साइड इसको चेंज करते हैं और वर्टिकल कंट्रोल करते हैं इसको.
These are the aircraft components. सो ये आपका फ्रंट व्यू है किसी भी एयरक्राफ्ट का, और ये आपका साइड व्यू है। फ्रंट व्यू से आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से आपके एक विंग स्पैन के लास्ट से दूसरे विंग स्पैन के लास्ट तक जो होता है उसको हम कहते हैं विंग स्पैन। ठीक है, विंग स्पैन लेंथ कहते हैं उसको। और एक व्हील से दूसरे व्हील के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं व्हील ट्रेड और व्हील ट्रैक। और ये इसका फ्रंट व्यू है, और ये इसका साइड व्यू है। साइड व्यू से जो आपका कॉकपिट होता है यहाँ से लेंथ लेके आपके जो टेल तक जो लेंथ होती है ये इसकी टोटल लेंथ होती है। और जो बैक पे जो टेल होती है उसकी हाइट जो होती है आपके नीचे ज़मीन के साथ तक उसकी ये मैक्सिमम हाइट होती है। और जो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जो आपके व्हील्स होते हैं उसको हम कहते हैं मेन गियर। और जो आपके कॉकपिट के नीचे फ्रंट व्हील्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं नोज गियर। और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं व्हील बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोज गियर किसे कहते हैं और मेन गियर किसे कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं। अब वापस आते हैं इसमें। ये आपका ये वही बताया व्हील कॉन्फ़िगरेशन, एयरक्राफ्ट कैपेसिटी, ऑपरेटिंग रेंज एंड नॉइस, फ्यूजलेज लेंथ फ्रॉम नोज टू टेल जो मैंने आपको दिखा दिया है, गियर थ्रेड डिस्टेंस बिटवीन द मेन गियर्स, ये जो आपको दिखाया है डिस्टेंस बिटवीन द मेन गियर, हाइट जो टेल से हम लेते हैं, टेल विथ व्हील्स बेस, डिस्टेंस बिटवीन द नोज गियर एंड मेन गियर एंड विंग स्पैन। ये आपको दोबारा बता देता हूँ, ये आपका विंग स्पैन है। ये जो डिस्टेंस होता है मेन गियर्स के व्हील्स के दरमियान उसे हम व्हील ट्रेड कहते हैं। आपके कॉकपिट से टेल तक जो डिस्टेंस होता है उसको लेंथ कहते हैं। और ये जो आपका सीजी के नीचे आपके जो गियर होता है उसे हम मेन गियर कहते हैं। और ये जो आपका कॉकपिट के नीचे होता है उसे हम नोज गियर कहते हैं। उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम व्हील बेस कहते हैं। और ये इस हाइट को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। ये एक एयरक्राफ्ट है बोइंग 747, और उसको भी उन्होंने दिखाया है, उसकी हाइट दिखाई है। ये उसका एंगल है 14 डिग्री का। उसकी टोटल लेंथ जो है वो 75.67 मीटर्स है, उसकी हाइट वो 24.87 मीटर्स है। और ये इसके विंग स्पैन जो लेंथ है वो 81.5 मीटर्स है। Types of engines and propulsion. Engines provide movement to aircraft slow or fast and low or high altitude. इंजन बेसिकली इंजन्स ही आपके एयरक्राफ्ट की स्पीड को स्लो और फास्ट करते हैं। अगर आपका हैवी इंजन्स हैं तो उसकी स्पीड आपकी, और जेट इंजन्स हैं तो उसकी स्पीड आपकी ज़्यादा होगी। Atmosphere or trans-atmospheric propulsion system, types of engines, details can be taken from book or internet. ये तीन किस्म के बेसिकली इंजन होते हैं, पिस्टन इंजन्स, जेट इंजन्स और रॉकेट इंजन्स। इसकी जो डिटेल है वो आप नेट से या बुक से देख सकते हैं। Weight and wheel configuration. Total weight of the aircraft, wheel configuration, number of gears, number of wheels in each gear, distribution of load to pavement surface. बेसिकली आप रनवे डिज़ाइन करते हैं तो रनवे डिज़ाइन के लिए आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी लोडिंग रिक्वायर्ड होती है। ये आपकी टिपिकल एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी भी एयरक्राफ्ट की। अगर आपका ट्राईसाइकिल लैंडिंग गियर विद सिंगल टायर्स है, मीन टू से आपका एरोप्लेन बहुत छोटा है, उस पर जो लोडिंग है वो बहुत कम है, तो आप ये सिंगल टायर के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी। ये आपके ट्विन व्हील्स हैं, डबल व्हील्स होते हैं इस पे। ये आपके ट्विन टैंडम व्हील्स हैं, इसमें 4 व्हील्स इकट्ठे होते हैं। ठीक है, इसमें 6 व्हील्स इकट्ठे होते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है। ये देखें, ये सिंगल टायर कहते हैं इसको, इसको डुअल टायर, इसको ट्रिपल टायर और इसको क्वाड्रपल टायर्स कहते हैं। ये 2 सिंगल इन टैंडम एक्सल, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है। अब ये जो है ये आपको दिखाया गया कि अगर सिंगल व्हील होगा तो इसके ऊपर कितना है, ये 305 psi या 39,000 lbs ये उठा सकता है। अगर ये आपका है तो इसके ऊपर आपका 180 psi आएगा एक व्हील के ऊपर। टोटल ये 155,000 आपका lbs आ जाएगा। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के साथ डिफरेंट लोडिंग
बता दी गई है कि अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ करेंगे तो इसकी लोडिंग इतनी आएगी। डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट के ऊपर। ये एक एयरक्राफ्ट है, एक गियर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ A380 एयरक्राफ्ट है। उसके ये देखें आप, नोब लैंडिंग नोज गियर है, ये उसके मेन गियर्स हैं और ये इसकी बैक गियर्स है। ठीक है, तो इसके दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी गई। Aircraft weight. Weight, one major factor that governs the runway length. वेट एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपके रनवे लेंथ को डिसाइड करते हैं उसके वेट के मुताबिक। OEW stands for operating empty weight or mass, is the weight of the aircraft without fuel and payload, including pilots, crew and empty seats without payload. Depends upon the seating configuration. OEW stands for operating empty weight. In operating empty weight हम उसमें आपके पायलट्स का वेट और सीटों का वेट आता है, जिसमें वो इसमें आपका फ्यूल वेट नहीं लेते और ना ही आपके पैसेंजर्स का और ना ही कार्गो का वेट। मीन टू से हम जस्ट पायलट्स का वेट और आपकी सीट जो उसमें सीट्स कॉन्फ़िगरेशन लगी हुई है, जितनी सीट्स लगी होती है उनका वेट और आपके एयरप्लेन का एम्प्टी वेट लेते हैं, तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट। उसके बाद आपका आता है PYL। PYL स्टैंड्स फॉर पेलोड, जिसमें हम पैसेंजर्स और कार्गो का वेट लेते हैं। ठीक है, और ZFW स्टैंड्स फॉर जीरो फ्यूल वेट, above which all additional weight must be fuel। मीन टू से कि हम जिसमें हम पेलोड भी ले लेंगे, पैसेंजर्स का वेट, कार्गो का वेट, एयरप्लेन का वेट, पायलट्स का वेट, सब वेट लेते हैं, बट उसमें फ्यूल वेट नहीं लेते, तो उसको हम कहते हैं जीरो फ्यूल वेट। MTOW stands for maximum takeoff operating weight. Maximum takeoff operating weight, structurally the maximum demonstrated mass to take off for safe flight, excludes run-up fuel and includes OEW fuel and payload. Longer trips required more fuel with less payload. मैक्सिमम टेक ऑफ ऑपरेटिंग वेट वो वेट होता है कि वो वेट जिस वेट को लेके आपका एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। इसमें ऑल फ्यूल्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें ऑपरेशनल एम्प्टी वेट प्लस पेलोड प्लस ट्रिप फ्यूल प्लस रिजर्व फ्यूल। ठीक है, यहाँ पे जीरो फ्यूल वेट प्लस ट्रिप फ्यूल प्लस रिजर्व फ्यूल। इसमें ऑल फ्यूल इंक्लूड होता है, जिसमें एरोप्लेन का अपना वेट, जो हाली वेट जो हुआ, जो पैसेंजर्स का प्लस कार्गो का वेट, प्लस ट्रिप फ्यूल, वो फ्यूल के उसने लाहौर से इस्लामाबाद या लाहौर से कनाडा जाना है, उसको कितना फ्यूल चाहिए वो उसका वेट, प्लस एक रिजर्व फ्यूल होता है। रिजर्व फ्यूल वो फ्यूल होता है जो इमरजेंसी के तौर पे उसके अंदर रखा जाता है, उसको हम रिजर्व फ्यूल कहते हैं। ये सब वेट को हम ऐड करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, कि इतना वो वेट लेके टेक ऑफ कर सकता है इजीली। MSLW stands for maximum structural landing weight or mass, is the maximum demonstrated landing weight to keep the landing gear intact at maximum sink weight vertical speed। मैक्सिमम ये स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट वो वेट होता है कि जिसमें आपका ट्रिप फ्यूल का वेट तो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो ट्रिप में यूज हो गया, बाकी सारा वेट उसमें इंक्लूड होगा जिसको वो लेके इजीली लैंड कर सकता है। MSPW maximum structural payload weight is the maximum demonstrated payload to carry out without stretching the aircraft fuselage। Zero fuel weight minus OEW ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट। इसको हम कहेंगे कि आपका जो जीरो फ्यूल वेट आपका जिसमें पे लोड प्लस आपका स्ट्रक्चरल वेट सारा वेट आया था, जस्ट आपका फ्यूल नहीं था, वो वेट माइनस आपका ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट, हम इसको माइनस करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम स्ट्रक्चरल पेलोड वेट आ जाएगा कि आपका उस एयरप्लेन का वेट कितना है। मीन टू से हमने इसमें से ये आपका टोटल वेट है विदाउट फ्यूल, और उसमें से हम अगर पायलट्स का वेट और सीटों का वेट निकालें तो आपके पास स्ट्रक्चरल पेलोड वेट आ जाएगा। MTW stands for maximum taxi weight or maximum ramp weight for ground maneuvering, usually slightly more than the MTOW including run-up fuel।
बेसिकली जब आपका एयरप्लेन आप उसको स्टार्ट करते हैं और उसकी लोडिंग और अनलोडिंग हो रही होती है, तो आपका कुछ फ्यूल ऐसा होता है जो आपका टेक ऑफ से पहले बर्न हो जाता है। बट जो आप टेक ऑफ से पहले जो आपका वेट होगा वो आपका टैक्सी वेट होगा, कि आपकी टैक्सी वे यहाँ आपके एयरप्लेन पे जब एयरप्लेन आपका स्टे करता है और उस पर उसकी लोडिंग हो रही होती है, तो उसके दरमियान आपका जो फ्यूल होता है वो ज़्यादा होता है। जब वो अगर आपका आधा घंटा या 1 घंटा आपका वो इंजन उसका ऑन रहता है, तो ऑब्वियसली उसका फ्यूल थोड़ा कम होगा आपका जब वो टेक ऑफ करेगा। तो टेक ऑफ से पहले का जितना वेट होगा इंजन स्टार्ट करने से पहले, वो सारा जो वेट होगा वो होगा मैक्सिमम टैक्सी वेट। DTW, desired takeoff weight, is the weight of aircraft considering fuel plus reserve fuel, payload and operating empty weight to complete a given stage. DTW is equal to payload weight plus OEW plus trip fuel plus reserve fuel. These are the percent weight distribution. अगर आपका एयरक्राफ्ट शॉर्ट रेंज के लिए उसका ट्रिप बहुत छोटा है, तो उसके उसमें ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट वो लेंगे हम, वो उसका 66% होगा। 24% उसमें हम पेलोड और पैसेंजर्स का वेट और कार्गो का वेट डालेंगे। और ट्रिप फ्यूल अगर उसका 6% है, तो उसमें रिजर्व फ्यूल आपका 4% होगा। इसी तरह अगर हम लॉन्ग रेंज अगर लाहौर से कनाडा जा रही है फ्लाइट, तो उसमें ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट उसका 44% होगा। पे लोड ऑब्वियसली उसका कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्यूल काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि जब कनाडा आपका एयरप्लेन जाता है तो वो आप उसमें बेसिकली 4 इंजन होते हैं, 2 एट ए टाइम चलते हैं। और जब जब वो कुछ टाइम के बाद वो फिर 2 रेस्ट करते हैं और बाकी 2 चल जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ट्रिप फ्यूल काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। 42% वहाँ का ट्रिप फ्यूल होगा और फ्यूल रिजर्व उसका 6% होगा। ये ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट के जो होता है वो 44 से 66% होता है। पे लोड आपका मैक्सिमम जो होता है वो 16 से 24% तक ले सकते हैं आप। अब देखिए, आप शॉर्ट रेंज के लिए, छोटे रेंज के लिए हम उसमें वेट ज़्यादा कर देते हैं, और क्योंकि उसका फ्यूल कम हो जाता है, ठीक है। फ्यूल रिजर्व आपका जो होता है वो 4 से 6% होता है, और ट्रिप फ्यूल आपका 6 टू 42% है। 6 मीन्स के वो शॉर्टेस्ट ट्रिप है आपका, 42 मीन्स कि आपकी जो ट्रिप की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। एयरक्राफ्ट वेट्स डाटा, ये डिफरेंट एयरक्राफ्ट का वेट डाटा के मैक्सिमम वैम्प वेट इस DC-10 का। ये वैम्प वेट आपका मैंने आपको पहले बताया, जो आपका वैम्प वेट है जहाँ पे आपकी लोडिंग हुआ है तो तब उसका वेट ज़्यादा होगा। तो फिर लैंडिंग के दौरान उसका, क्योंकि आपका फ्यूल उसमें फ्यूल बर्न हो गया, तो इसका वेट ये बचा। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि वो कुछ फ्यूल जो आधा घंटा घंटा जब आपकी लोडिंग हो रही होती है, जब आप इंजन आपका ऑन होता है, तो उसमें जो फ्यूल आपका कंज्यूम होता है, तो इसलिए आप देखें 196,400 और ये 195,050। ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट उसका ये है, ठीक है। मैक्सिमम 0 ये पेलोड आप इसमें इतना है, मदमीटो से इतने इसके पैसेंजर्स का वेट हो, कार्गो का वेट इसमें इतना आया, और यूजेबल फ्यूल कैपेसिटी जो है उसका वेट इतना है। ये डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई। मिनिमम टर्निंग रेडियस, मिनिमम टर्निंग रेडियस आम ज़बान में वो रेडियस है या वो एरिया रिक्वायर्ड है कि जिस मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड एनी एयरक्राफ्ट जिसमें वो अपने टर्न कर सके, उस एरिया को हम कहते हैं मिनिमम टर्निंग रेडियस। Nose gear steering during the turning makes an angle with the axis of main gear. Maximum angle of rotation is 50 to 60 gear. ये आपका nose gear है, ये आपका main gear है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है उसको, वो आपका एंगल जो होता है वो बेसिकली 50 to 60 डिग्री होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन, और जो आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड द farthest विंग टिप इज नोन एज द मिनिमम रेडियस। और ये जो आपका ये लाइन होती है, मैक्सिमम जो रेडियस आपका टर्निंग रेडियस, मिनिमम आपको जितना डिस्टेंस चाहिए होता है वो उसका मिनिमम टर्निंग रेडियस होता है। बेसिकली ये मिनिमम टर्निंग रेडियस इतना एरिया रिक्वायर्ड होता है जब आपका
कोई भी एयरक्राफ्ट किसी रनवे पे आता है, रनवे से वो टैक्सी वे पे, एप्लन पे या हैंगर्स पे जाना हो, उसने के लैंडिंग, लोडिंग, अनलोडिंग या फ्यूलिंग वगैरह या मेंटेनेंस के लिए जाना हो, तो उसको कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है कि वो उससे उस टर्न करके उधर पहुंच जाए, तो उस एरिया को हम मिनिमम टर्निंग रेडियस कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये इसकी रनवे है, रनवे से अगर आप इसने इस टैक्सी वे के जरिए इधर फ्यूलिंग के लिए जाना है, तो इसको इतना एरिया रिक्वायर्ड होगा तो इजीली वो टर्न कर सकता है। अगर इसकी डिमेंशन ज़्यादा, तो इट्स ऑब्वियस कि इसको ज़्यादा रेडियस चाहिए होगा। To determine the aircraft position on the apron, adjusted to the terminal building and establishing the path of the aircraft movement. कि अगर आपके एयरक्राफ्ट ने एपन की तरफ जाना है या किसी टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ जाना है, तो उसको मूवमेंट के लिए कुछ एरिया रिक्वायर्ड होगा ताकि वो टर्न कर सके। मैक्सिमम रेडियस इज क्रिटिकल विद रिगार्ड्स क्लियरेंस टू एडजस्टेंट बिल्डिंग्स एंड एयरक्राफ्ट। ये बहुत क्रिटिकल रेडियस होता है कि जैसे क्लियरेंस डिस्टेंस चाहिए होता है ताकि इजीली वो विदाउट एनी हर्डल वो इधर से मूव कर सके। मिनिमम टर्निंग रेडियस टू रिड्यूस एक्सेसिव टायर वियर एंड शेयरिंग द पेमेंट सरफेस। New aircraft have capability to swivel the main gear for sharp turns. अब जो नए आपके न्यू टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, उसमें जैसा कि इसमें आपने देखा है कि इन एयरक्राफ्ट में जो आपका एंगल बनता है वो 50 टू 60 डिग्री बनता है, बट जो आपके नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो शार्प टर्न्स भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनको रेडियस कम रिक्वायर्ड होता है फॉर टर्निंग। Minimum circling radius in air to make smooth turn and depends upon type of aircraft, air traffic volume and weather conditions. ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो आपको हवा में टर्न करने में फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। Ground speed, aircraft speed में ground speed, speed of the aircraft relative to the ground, air speed, speed of the aircraft relative to the medium कौन सा होता है आपका air होता है। If ground speed is 600 kilometers per hour and opposite speed of wind is 100 kilometers per hour, तो air speed जो होगी वो आपकी होगी 700 kilometers per hour। Match number ratio between aircraft speed and speed of the sound. Speed of the sound at minus 25 degrees centigrade is 1138 kilometers per hour, 0 degree is 1194 and 30 degree is 1263। जब भी आप किसी एयरप्लेन पे बैठते हैं तो उसके सामने एक सीट के पीछे टीवी लगा होता है जिसके ऊपर आपका आल्टीट्यूड भी लिखा होता है कि उसका ज़मीन से कितने डिस्टेंस, कितने मीटर्स वो आल्टीट्यूड हाइट पे है, और उसके बाद उसका टेम्परेचर भी लिखा होता है कि आपका इस जगह पे -40, -50 या -60 डिग्री टेम्परेचर है उस वक्त, और उसके साथ स्पीड भी आई होती है जिससे आपको पता लग जाता है कि इसकी स्पीड इस टाइम कितनी है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी डिपेंड करती है एयरक्राफ्ट की डिमेंशन पे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, अमाउंट ऑफ कार्गो। अगर उसकी डिमेंशन बढ़िया हो, इसमें इंजन पावरफुल लगे हुए हैं, देन आपकी जो पे लोड होगा वो ज़्यादा होगा। पे लोड आपका पैसेंजर्स और कार्गो का वेट होगा। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ एयरक्राफ्ट एंड propulsion पावर ऑफ द एयरक्राफ्ट। propulsive पावर मीन्स इंजन की पावर जो होगी। उसके बाद नॉइस, for airport near developed areas, major source of noise is the engine. Noise is more severe during the takeoff than during landing. जब टेक ऑफ करता है तब उसकी नॉइस ज़्यादा होती है क्योंकि वो थ्रस्ट के साथ ऊपर जाता है, और इंजन नॉइस हैव रिड्यूस्ड ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और जो इंजन की नॉइस न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसमें इंजन की नॉइस को कम किया जा सकता है, कम किया गया है अब जो नए एयरक्राफ्ट आए। ये आपका फर्स्ट पार्ट था इस एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आपको जूम आईडी मिल जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।